جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہاڑی گل کے زیر اہتمام تصور مقبول بٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز مقبول بٹ شہید ریلی سے ہوا۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں مقبول بٹ شہید کے پورٹریٹ اور JKLF کے جھنڈے اٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا اور آزادی کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچے، جہاں تصور مقبول بٹ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی اور مقامی قائدین نے مقبول بٹ شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی اور 11 فروری مقبول بٹ کی 38ویں برسی کو زور و شور اور نہایت عقیدت اور احترام سے منانے پر زور دیا۔ اجمل شاہین، JKTV، ہاڑی گل، جموں کشمیر۔ نام جنت سے اب کوئی تصویر ہو، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ ہم سب مل کے JKLF آزان دے رہی ہے، یہ موزن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی تحریک ہے، یہ غیرت مندوں کی ایک تحریک ہے، یہ جرات مندوں کی ایک تحریک ہے۔ آؤ اس تحریک کے اندر اپنا نام لکھواؤ، آگے بڑھو۔ چھوٹا سا بندہ بھی آگے چلے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ پیارے کشمیر کے کس نے کہا کہ JKLF کوئی پارٹی ہے؟ JKLF ایک تحریک ہے، JKLF ایک کردار ہے، JKLF ایک بنیاد ہے جو کشمیری قوم کی امن ملک کی ترجمانی کرتی ہے۔ آؤ ان کا ہاتھ مضبوط کرو، آگے بڑھو۔ الحمدللہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، تھائی لینڈ میں، اٹلی میں، سعودیہ میں، دبئی میں ہماری تنظیم مکمل الحمدللہ سیٹ اپ کے اندر ہے۔ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور جموں میں، سری نگر میں ہماری پارٹی پوری آرگنائز ہے۔ آپ لوگ آؤ، ہمارا ساتھ دو۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ جب آپ ساتھ دو گے ہم کیا کریں گے؟ سنو، تمام لوگ آ جاؤ، نون لوگ بھی آ جاؤ، پیپل پارٹی کے لوگ بھی آ جاؤ۔ جو دال روٹی ان سے ملتی ہے کھاتے رہو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وطن کی آزادی کے لیے آؤ، دالا کی کھا لے جلیا نو جڑا کی لب لایا تو الویرا لیا سارے بلا انی خاص نے مکر رہی کرنے انہیں بھی کسیتا جڑا کی انہیں بلا لب لایا وہ بھی تحریکی لاؤ گھڑیوں میں لوگ نے بلا چلو تو سارے لوگ اشیاء کی 100% پھر اس کہہ لیو یہ جو کالج کی یونینوں پہ انہیں پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ سنو، یہ تمہارے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ کالج کی یونین پہ جو پابندی ہے یہ اس لیے ان بدماشوں نے لگائی ہے کہ یہ پیچھے سے وہ لیڈر نہ پیدا ہو جائے، چونکہ کالج لیڈر پیدا کرتا ہے۔ آج بھی ان کی وہ تنظیم اس سارے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے قائد، ہمارے چیئرمین جناب یاسین ملک صاحب اسی تہاڑ جیل کے اندر قید ہے، اور آج بھی ادھر لوگوں کو کرفیو لگا کے، لاک ڈاؤن لگا کے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں اس خطہ کے اندر ہمارے سارے لوگ ہم بنیادی حقوق سے ہی محروم ہیں، اور پھر نت نئی ٹیکسیز، پھر نئے وسائل کی لوٹ مار، اس طرح کی ساری سچویشن کے اندر ہم اپنی اس تحریک کو ایک لوگوں کی تحریک بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس تنظیم کو تمام کشمیریوں کی نمائندہ تنظیم بنانے کا عہد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب 47 کے اندر عالمی سامراج نے
पूरी दुनिया के अंदर तकसीमें करवाई, उसमें हमारा खित्ते की तकसीम भी करवाई गई इसी तरह से। और यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गवाश्ता हुक्मरानों ने उस वक्त उसी साम्राज्यी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हमारे मादरे वतन को तकसीम करवाया। ये कौन कहता है कि पाकिस्तान वकील है? जो खुद काबिज है वो आपका वकील कैसे हो सकता है? ये गलत, ये मलालते हमें दूर करने होंगे। हिंदुस्तान हमारे ऊपर काबिज है, वो जमहूरी कैसे हो सकता है? जब 47 के बाद आलमी वार के बाद जब ये कानून साजी की गई कि तमाम दुनिया के कौमों के एक तरह के हुकूक हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उस जमहूरी बात को, इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा? हम कैसे कह सकते हैं कि जो यहां हमारे लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ लड़के जो हुकूमत बनाने की कोशिश की, उसको किसने सबदार किया, उसको किसने खत्म किया? वही यही पाकिस्तान था। दोस्तों, कोई भी तहरीक है, ये कारकुन ही उस तहरीक का ईंधन होते हैं और यही सलाम के काबिल है। आज हम जिस अजीम कायद को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए, आपने देखा कि लिबरेशन फ्रंट की ये तारीख है कि हमने जब कुर्बानी दी है तो कायदीन सभी अमल में नजर आ रहे हैं। वो कायदे इनकलाब यासीन मलिक की सूरत में तिहाड़ जेल में नजर आ रहे हैं। वो कायदे तहरीक की सूरत में तवील जिदोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो शहीद कौम, शहीद मिल्लत की सूरत में तिहाड़ जेल की तख्ताए दाल में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम ये फख्र से कहना चाहते हैं और कहते हैं कि हम रवायत शिकन हैं और हमारी जो तहरीक है वो इसी बात की मुत्तकाजी है कि हम आम लोग इस तहरीक का हिस्सा बने। आपके मुल्क पर 2 गास्पू ने नहीं 3 गास्पू ने कब्जा करके रखा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने। उधर हिंदुस्तान आपके वसाइल को लूट रहा है, इधर पाकिस्तान आपके वसाइल पे काबिज है, उधर चाइना आपके वसाइल पे काबिज है। हमने इन तीनों से जो है वो आजादी हासिल करनी है, खुद मुख्तारी और खुशहाली हासिल करनी है इंशाल्लाह। जिस शख्स ने कुर्बानी दी हुई है, जिस मकसद के लिए, जिस काज के लिए, जिस मिशन के लिए, हम उस मकसद को, उस काज को, उस मिशन को आगे बढ़ाने का अहद करते हैं, उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे लिए भी हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमें खाली यहाँ पे तकरीरें नहीं करनी है। हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां पहचाननी चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरे मोहतरम साफी राजा साहब ने कहा कि जी यहाँ पे सारे लोग अगर कल खुद मुख्तार कश्मीर की बात आती है तो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं। यही हमारा एक अलमिया है, यही हमारे लिए यही एक बुराई है कि हम कोई तयन नहीं कर सके राह का, हम दो टोक बात नहीं कर सकते, हम मुनाफिकत का शिकार हैं, हम जुल्म बर्बरी व जबर का शिकार हैं। यहाँ पे हम यहाँ के ये जो यहाँ पे हुक्मरान काबिज हैं, इनके जो तरीकाकार हैं, टूटी खंबा और ये सड़कों के इस मिसाइल में शिकार हो चुके हैं। हमें इन चीजों से निकलना होगा। हम चूंकि ये महसूस कर रहे हैं कि जब एक तरफ से हमारा ज़मीर जो कह रहा है कि खुद मुख्तार कश्मीर बेहतर है, मकबूल बट शहीद की कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी है, यासीन मलिक की कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी है, तो फिर वो क्या बात है, वो क्या वजह है, वो क्या असबाब है कि जनाब आप नाफकत की राहों पे आप चल रहे हैं? आप मकबूल बट शहीद की जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जो उसकी राह पे चल रहे हैं, आप उनका साथ दें, आप उनके साथ चले, आप उनकी जिद्दोजहद के साथ चले। हम सब लोगों की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी है। अरे हम वो लोग हैं जो किसी कुर्बानी से नहीं डरते, किसी चीज से नहीं डरते। हमारे
कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। मेरे कायद मकबूल भट्ट ने हमारी वाबस्तगियां किसी भी सियासी जमात से हो सकती है, किसी भी नजरिए से हो सकती है। नौजवानों, JKLF के जो नौजवान हैं, बिलखुसूस नजरिया खुद मुख्तार पे जो चलते हैं, आपको मैं एक दर्स देता हूँ, हमेशा नफरत के बीच नहीं बोले आपने, आप मोहब्बत के साथ चले और जिसका जो नजरिया है उसको नजरिए से कायल करें, नफरतों के बीच न बोए और हर पार्टी के कारकुन की इज्जत करें। कि तुम मेरे कश्मीर की एक ऐन जो है वो तुम तकसीम नहीं कर सकते। तुमने मेरे मसाइल पे कब्जा किया हुआ है। आज आप देखें, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ये एजाज हासिल है, हमारा मकबूल पर शहीद तहार जेल की फांसी को चुमा। और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन तहार जेल दिल्ली के अंदर है, बारक नंबर 2 के अंदर है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन वजीरों, इन लुटेरों से आप पूछो कि तुम लोग क्या करते हो। तुम्हारा वो हीरो जिसकी साहब का जो हुक्मरान है, हम फारूक अदर को भी सलाम पेश करते हैं। साहब हुकूमत ने 11 फरवरी को मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे कौमी हीरो की छुट्टी करा दी। और ये बड़ा अलमिया है कि आज हम लोग मकबूल पर शहीद के उस कारवां के साथ हम खड़े हैं और ये हम ये समझते हैं कि मकबूल पर शहीद ने अपना जान का नजरान देके इस पूरी कश्मीरी कौम 11 फरवरी को हम लोग जिला बाग के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर बड़ा प्रोग्राम होगा और तमाम लोगों को हम दावत देते हैं। दुनिया भर में कश्मीरी, चाहे वो श्रीनगर में है, जम्मू में है, लद्दाख में है, गिलगित में है, मकबूल के नाम से मशहूर है। और जिन लोगों ने मेरे वतन को तकसीम किया, आज वो लोग, उनका नाम लेवा कोई नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, जिन लोगों ने अपने वतन के लिए जान दी है, शोजा ने खून दिया है, वो कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। आज के दिन की मुनासबत से मैं शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ। इसी तरह 12 फरवरी 1992 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 7 सरफरोश, जिन्हें शोधाए चिकोटी के नाम से याद किया जाता है, जो पाकिस्तानी आर्मी की गोलियों से सीज फायर लाइन उबूर करते हुए शहीद हो गए थे। मैं आज के दिन उनकी अजमत को भी सलाम पेश करते हुए इस अज़म का इज़हार करता हूँ कि उनके मिशन की तकमील तक हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस जदोजहद को जारी रखेंगे। सामीर मोहतरम, बदले हुर्रियत बाबा कौम, अजीम कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद ने उस वक्त काबज़ीन के खिलाफ आवाज बुलंद की। 84,471 मरबा मील पर फैली रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और मुकम्मल खुद मुख्तारी की बात की। मकबूल भट्ट ने इस अजीम मकसद के लिए शहादत को गले से लगा दिया। मकबूल भट्ट शहीद ने फरमाया, ये वतन हमारा है, इस पर हुकूमत हम करेंगे, इसकी आजादी की जंग हम लड़ेंगे। जमात इस्लामी हो या लिबरेशन फ्रंट हो या पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का है तो कश्मीरी, ये कुर्सी की मेरे भाइयों जंग है। आपने देखा इमरान खान की इस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ, मुझे अफसोस भी होता है, हैरान कि हम लोग बिकते आए और बिकते रहेंगे। मुझे लगता है हम किसी के इशारे पे चलते। जुम्मे के दिन उसने जो है ना वो कश्मीरियों के साथ एक मजाक रखा, ठीक है, बढ़ते लगाई अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। मैं शेम करता हूँ, मोदी पे यकीन करे, वो काफिर है, वो दुश्मन है। हम हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और रहेंगे। हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है, हम हिंदुस्तान कौम के दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान की कौम के दुश्मन नहीं है। ये हमारा बुनियादी हक है मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमने लेना चाहिए, इसके लिए हमें निकलना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मसला कश्मीर का तीसरा ऑप्शन वहाँ मौजूद है और कश्मीरी वहाँ फ्री के, लेकिन वही 4 माह 22 दिन के बाद 5 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो करारदाद वहाँ पेश कर रहा है उसमें नाम लिखी है, नाम बारह से हम तो भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पड़े हुए हैं और मसला कश्मीर वहीं से जो आस्ता खराब हो रहा है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने हवाले से जो कमीशन तय किया उसमें क्या हुआ, फिर जो आगे देख ले आप, जो मैदान शाम हुआ, 65 की जंग हुई, वहाँ क्या हालात हुए। फिर उसी तरह जब
1971 की जो जंग हुई, 71 की जंग हुई, 71 की जंग में मौजूद धीर हो रही है फसाद और मायदा शिमला हो रहा है 12 जुलाई 1972 में। वहाँ जब कंट्रोल लाइन बनाई गई, आपने और मैंने क्या किया और आजाद कश्मीर के लोगों ने वहाँ क्या किरदार अदा किया? ये मेरे गरीब दिन इंसान, वो भी मेरे रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए, पहली दफा मेरा और उनका मुलाकात हो रही है। क्या आप और मैं वकील नहीं है, फ्रीक नहीं है, और किस तरह आप मसला किस तरह पेश करेंगे? आज हमारे हुक्मरानों को मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको इसको सरकारी छुट्टी के तौर पर बनाना चाहिए था, उनका ये दिन बनाना चाहिए था। ये हमारे हीरो थे, हम सबके हीरो थे। उन्होंने किसी जाति वाले से कहीं जंग नहीं लड़ी है, बल्कि इस कौम के लिए वो लड़े हैं। और मैं इस मौका पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमने पाकिस्तान को अपना वकील, अपना बड़ा भाई बनाया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ हमेशा सौतेलापन का सलूक किया है। कभी भी किसी भी मामले में कश्मीरी क़यादत को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, कश्मीरियों को उन्होंने करीब ही नहीं जाने दिया और खुद ही वो मामले करते रहे, खुद ही सारे मामले करते रहे और कश्मीरियों को उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। मकबूल बट शहीद को हमने बचपन से पढ़ा है, हम जहाँ भी जाते हैं अब पूरी दुनिया के मजदूरों की भी बात करते हैं, मेहनत कशों की भी बात करते हैं। अब ये नहीं कि कश्मीर की आज़ादी ये तो हमारा बुनियादी हक है, इसके अलावा भी जहाँ भी हमारा मेंबर है, जो भी है, वो नाइंसाफी, जुल्म, जबर के खिलाफ भी हम बात करते हैं। मैं मकबूल बट शहीद के एक इशारे के साथ इजाजत चाहूंगा। मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हुक्म ने, मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हुक्म ने, नूरे सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। साहब खुदा हुआ है कि इलेक्शन के अंदर जब हम जमात इस्लामी की कैंपेन करते हैं तो ये लोग हमें कहते हैं कि जाके मकबूला कश्मीर से इलेक्शन लड़ो या फलस्तीन से लड़ो, यहाँ तुम क्यों होते हो, तुम तो बातें उनकी करते हो। तो आज आप किस मुंह से ये बात करते हो? आज इस माशरे के अंदर पाइप दे दो तो लोग बिक गए, रोड दे दो तो नारे बिक गए, और सीट दे दो तो बंदे पूरे वज़ीर आज़म ही बिक गए। कुर्सी के लिए छीना छपटी हमारे असेंबलियों के अंदर। हमने कहा था कि आओ यहाँ पे राय शुमारी कराओ, इन लोगों से पूछो कि ये लोग चाहते क्या हैं। ये आजाद रहना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 74 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो ड्रामा रचा रखा है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। एंड पे एक ही नजरिया बताया जाता है, कश्मीरियों के दो ही नजरिए हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। अरे बाबा आप मुझे बताओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, ये लोग कोई साउथ अफ्रीका से यहाँ पे सैर करने के लिए आए हैं क्या? ये इस वतन के बाशिंदे नहीं है? हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, जो आपने 5 जनवरी 1949 को जो वादा किया था, कश्मीरियों को ये हक है कि वो फैसला क्या करेंगे। हिंदुस्तान पे हम तो लानत भेजते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के साथ अलग भी करने के तैयार नहीं है। जब तक मेरे मादरे वतन का एक चप्पा 84,471 मरबा मील का रकबा आजाद नहीं होता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गुजारी और वही जामे शहादत नोश किया और तिहाड़ की उस बदनाम जमाना जेल पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कब्जा रखा हुआ है और इस वक्त तक हिंदुस्तान को वो याद दिलाते हैं, कासिम कुतुब को याद दिलाते हैं। हमने जाने तो दी, लेकिन आपके सीनों पर हम राज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तब तक हम जो यहाँ रहेंगे, तब तक हम जश्न खाकी उनका भी नहीं मंगवाएंगे, तब तक हम मुतालबा नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का जरा जरा आजाद और खुद मुख्तार नहीं हो जाता है। जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान की, या जिस सतह पर भी कोई तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई काम किया, कोई वो काम इल्मी था या अमली था या मैदान जहाद में था, उन सबको हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हक में कबूल फरमाए।